friends, so my name is Tanya and welcome back to my channel Tanya Talks and Reaction। So आप लोग कैसे हैं? तो आज चलिए चलते हैं नए वीडियो की रिएक्शन पे। और जो आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें मैं बताती हूँ वीडियो का, मैं थोड़ा सा आपको एक प्रीव्यू दे देती हूँ। इस वीडियो में क्या होता है कि जो एक डिबेट चलता है बिटवीन अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक टीवी के हेड एडिटर है और कुछ अमेरिका के प्रोफेसर्स होते हैं, कुछ इंडिया के प्रोफेसर्स होते हैं। तो उनके बीच में तो जो अमेरिका होता है वो हमेशा अपना जो इमेज होता है उसको बहुत क्लीन चीट रखता है और वो कुछ भी गलती, वो खुद को बहुत मोरली हाई ग्राउंड पर रखते हैं अमेरिकन और बाकी को बहुत नीचा समझते हो। तो इसी चीज का जवाब इस वीडियो में अर्नब गोस्वामी ने बहुत क्लियरली दिया है, जिससे अमेरिकन की बोलती बंद हो जाती है। एक तो ये चीज। उसके बाद इन वीडियो को जब चाइनीज देखते हैं, क्योंकि चाइना की भी वैसे भी अमेरिका से नहीं पड़ती है, तो जब चाइनीज देखते हैं तो वो अपने जो व्यूज है वो कमेंट बॉक्स में एक्सप्रेस करते हैं चाइनीज में। वो बहुत इंप्रेस्ड होते हैं इस इंडियन एडिटर से, इस एंकर से, अर्नब गोस्वामी से। तो उस चीज को एक यूट्यूबर है वो चाइनीज कमेंट को हिंदी में कन्वर्ट करके बताएंगे। तो हम देखेंगे क्या क्या चाइनीज लोग रिएक्ट करते हैं और अर्नब गोस्वामी ने क्या जवाब दिया है और आप क्या राय रखते हैं, और मैं अपनी व्यूज बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना तो भूल ही गई। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फ्रेंड्स, मैं देख रही हूँ व्यूज तो बहुत आते हैं मेरे, चाहे मेरी वीडियोस पे 100-150 व्यूज आते हैं, पर सब्सक्राइब लोग नहीं कर रहे हैं। क्यों? आपको जो अच्छा लगता है आप बता सकते हो नीचे सच कमेंट बॉक्स में, मैं उस वीडियो पर रिएक्ट करूंगी। और प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज सपोर्ट माई चैनल। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 大家好，欢迎收看这期节目。咱们直入主题，先看一个短片。 You lecture me as an American to an Indian on values. And Professor Kupchan, this is about the West being weak. Professor Kupchan, allow me. What you're seeing is the West organize solidarity against Russia. No. West. The nations No. Professor Professor We're Kupchan. seeing serious sanctions against Russia. Yeah. Most of the world Now- is coming together now, against Professor- Russia. India should get off the fence. Okay, now I'll tell you something, Professor Kupchan. And I hope that you will allow me a decent I'll start response, with and real then reaction. Ambassador Pawan Verma will respond to you. I see John wants to respond to you. First, I'd like to. First of all, with the greatest of respect, Professor Charles Kupchan, you have no moral standing to talk. You are in no position, you as in America is in no position to pretend to be the guardian of democracy and human rights. You are the worst perpetrator of atrocities. You, in Barack Obama in 2011, intervened in a nascent Libyan civil war, using the NATO and Arab League partners, prolonging the war for 1 decade. You launched armed conflict in at least 6 countries. Iraq, Syria, Yemen, Somalia, Niger. You carry out drone strikes. You've killed thousands with your drone strikes. You run Guantanamo Bay. But since I listened to you till you completed, you must listen to me. You must listen to me, sir. Sir, you must listen to me. You're dealing with India. We're a big country. We're not your satellite state. So don't lecture us on what we need to do. We're going to look out for yourself. You use the phrase geopolitical expediency in place of values. You lecture me as an American to an Indian on values, and you say that we are acting in geopolitical expediency. Allow me to complete. Allow me to complete, sir. Allow me to complete. Where were your values? Where were your values? Where were your values when in the first 2 months of the US invasion of Iraq, 7,186 Iraqi civilians were direct casualties of the war? Was that your expediency? Was that expression of your values? हे मोम, मेरा कहना है कि मैंने इंडियन ब्रदर्स को कभी इतना पसंद नहीं किया जितना मैं आज करता हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे किसी अमेरिकी प्रोफेसर या स्कॉलर को नाराज़ करना, क्योंकि वह एक प्रोफेसर और स्कॉलर है तो वो बहुत रीजनेबल है और पावरफुल है और उसके कई रिलेशंस भी है, राइट? मतलब पूरी वीडियो का एडिटिंग प्रोसेस तो देखो। क्या लोगों ने ये जाना कि यूएस में इस प्रोफेसर को अभी भी प्रोफेसर कहा जा सकता है? जब आप छात्रों के सामने पोडियम पर खड़े होते हैं और बात करना शुरू करते हैं तो क्या आप एक व्यक्ति के रूप में योग्य या अयोग्य महसूस करते हैं? अगर अमेरिकन वैल्यूज़ की बात करें, क्या आपने इस बात पर कभी विचार किया है कि अमेरिकन वैल्यूज़ ने दूसरे देशों में कितनी आपदा लाई है? राइट? बिल्कुल नहीं।
अरे क्या आपके पास इराक और सीरिया को देखने का साहस है? तुमने क्या भयानक काम किया? क्या आप में इसका सामना करने की हिम्मत है? और ये यूएस के पूर्व विदेश मंत्री किस तरह की चीज़ है? हाल ही में उनका निधन हो गया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इसकी कीमत इराक में 5 लाख बच्चों के लॉस के बराबर थी। मैं सोच रहा हूँ, अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है, क्या आप अपने बच्चों को बता सकते हैं कि तुम्हारी मौत इसके लायक है? वह ऐसा नहीं कहेगा, लेकिन वह इराकी बच्चों के सामने ऐसा कह सकता था। अब मानव स्वभाव कहाँ है? मैं इसे बिल्कुल नहीं देख सकता। और उनमें अभी भी ऐसे बहुत हैं बुद्धिहीन राजनेता जो अभी भी यूएस के बारे में अंधविश्वासी हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब आपके परिवार के अपने बच्चों को वही दुर्भाग्य भुगतना होगा, तो जब आप दोबारा बात करेंगे तो मैं आप पर विश्वास करूँगा, अन्यथा आप बिल्कुल विलन हैं। जहाँ तक चाइना का सवाल है, हम भारत को यूएस के साथ नहीं जाने दे सकते। ये वह लक्ष्य है जिसे हमें हासिल करना है, इसलिए भारत में हमारी प्रगति का बहुत स्वागत है। हमारे विदेश मंत्री अब उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए इंडिया गए हैं। इसका मतलब है कि जब भी संभव होगा, हम चाइना और इंडिया के बीच के संबंधों को करीब लाएंगे और इंडिया को कभी भी यूएस के पास नहीं जाने देंगे। यदि इंडिया यूएस के अधीन आता है तो यूएस ये कह रहे हैं कि हम कभी इंडिया को यूएस के पास नहीं जाने देंगे, तो इंडिया कभी भी एक कंट्री पर रिलाई होगा ही नहीं ना इंडिया, क्योंकि इंडिया को यूएस का नेचर ही पता है और इंडिया को रशिया का भी नेचर पता है और इंडिया को वेस्ट भी पता है, यूरोपियन कंट्री के भी नेचर पता है। तो कौन कैसे क्या करता है इंडिया को पता है। तो इंडिया ये सोच रहा है कि इंडिया चाइना की तरफ आ जाएगा, वैसा भी नहीं। इंडिया सिर्फ अपने इंटरेस्ट की तरफ जाएगा। अब इंटरेस्ट किस तरफ है एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इससे आप जज कर सकते हो कि इंडिया इस कंट्री की तरफ है, पर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इंडिया सिर्फ अपने इंटरेस्ट की तरफ है। आप क्या सोचते हो इस बारे में? मान होगा जब रशिया की रियासत बड़ी मदद नहीं कर पाती है तो वे चाइना को नियंत्रण करने के लिए यूरोप को लामबंद करना शुरू कर देगा। हो सकता है कि इस समय आशियान दबाव ना झेल पाए, इसलिए यूएस की रशिया के समान चाइना के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की बहुत बड़ी संभावना है। दूसरे शब्दों में, इसलिए हम इंडिया को बहुत विनम्र लगते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में सांसद के निचले सांसद के अध्यक्ष ने इस बार एक और रिफ्लेक्शन प्लान रद्द कर दिया। उन्होंने रद्द क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगता है कि वे रशिया पर प्रतिबंध लगाने की यूएस की योजना का पालन करने के लिए भारत को राजी नहीं कर सकते। वे भारत को मनाने में असमर्थ थे, वहां जाने का कोई मतलब नहीं था और इसलिए ब्रिटेन ने ही यात्रा रद्द कर दी। और फिर चाइना के विदेश मंत्री योजना के अनुसार इंडिया पहुंचे और हमारी यात्रा शुरू की। इसलिए इस संबंध में मैं जो बात व्यक्त करना चाहता हूं वह यह है कि जब तक हम इसे अच्छी तरह से संभालते हैं तब तक इंडिया के यूएस में पूर्ण रूप से स्थानांतरित होने की संभावना लगभग 0 है। तो सबसे पहले एना चेन ने लिखा है कि इंडियन लोग ये डिबेट देख के बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे और जर्नलिज्म की ऐसी हाई क्वालिटी ने चाइनीज लोगों का भी दिल जीत लिया। आई लाइक दिस होस्ट सो मच। उन्होंने जो बोला वो दुनिया के 90% लोगों की दिल की बात है। उसके बाद काइचैक चुन ने लिखा है कि किसी भी चाइनीज टीवी होस्ट में इतना ऑडेसिटी, करेज और राइटियसनेस नहीं है। इन शॉर्ट अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो किसी भी चाइनीज रिपोर्टर के में उतना दम नहीं कि वो यूएसए को उसके मुंह पे रख के झाड़ दे। एक देश का मीडिया ही उसका बैकबोन होता है और इंडिया के पास वो है। उसके बाद किनवाई एनजी ने लिखा है कि ये बहुत रेयर है जब किसी रिपोर्टर को ऐसे खुलेआम क्लियर कट फैक्ट्स बताते देख रहा हूँ। कोई मुझे कुछ भी कहे, आई हैव टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। ही हैज इंडीड स्पोकन द ट्रूथ। उन्होंने वो सच कहा जो कि मेजोरिटी देश कहना चाहते हैं, जिन्होंने इन इंपेरियलिस्ट यूएसए के हाथों सफर किया है। उसके बाद सी नाइचुन ने लिखा है कि आज मैंने ये डिबेट देखा और इसको मैंने काफी एंजॉय भी किया। अब तो मुझे इंडिया बहुत पसंद आने लगा है। उसके बाद एम क्वीन ने लिखा है कि ये सच में अनबियरेबल है कि अमेरिकन्स हमेशा खुद को मॉरल हाई ग्राउंड्स में रखते हैं और दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे कि उन्होंने ऐसा या फिर इससे भी कई ज्यादा बदतर चीजें की ना हो। और हालांकि इस इंडियन होस्ट ने इतने सारे एविडेंसेस दिखाए, लेकिन फिर भी इन अमेरिकन स्कॉलर्स की बेशर्मी तो देखो, वो फिर भी रिफ्यूज किए जा रहे हैं। उसके बाद लीन वॉल्टर ने लिखा है कि इंडिया इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और चाइना को इससे सीखना चाहिए। होस्ट ने बिल्कुल वही कहा जो उसके दिल में था। थैंक्स कि इंडिया की जो पोजीशन है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेके, वो इंडिया ने खुद तय किया है और रशिया के साथ उनकी रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग है। उसके बाद ऑड्रे ने लिखा है कि इंडिया ने तो हमारी आंखें ही खोल दी। एक तरफ जहां पूरी दुनिया यूनाइटेड स्टेट्स के सामने झुकी हुई है और उनके इशारों पे चल रहे हैं, दूसरी तरफ इंडियन होस्ट ने खुले आम सारे टिपिकल और क्लासिक यूएसए के क्राइम्स को उनके सामने गिनवा दिया और उनकी पोल खोल के रख दी। इंडिया हैज सच अमेजिंग पीपल। इंडिया सच में एक बड़ा और ताकतवर देश है। मेलिस ने लिखा है कि हम सारे चाइनीज
दिल की गहराई से इस होस्ट को एक बड़ा सा लाइक देते हैं। उसके बाद आई एम ब्रदर जियान ने लिखा है कि देयर इज अ रीजन कि इंडियंस को बहादुर कहा जाता है। आई अपलॉड हिम। उसके बाद लेजी ने लिखा है कि इनको सुनने के बाद आई एम स्पीचलेस। हमारे देश के सो कॉल्ड स्कॉलर्स तो अमेरिका के सामने अपना मुंह भी ठीक से खोल नहीं पाते। उसके बाद फनी चैन ने लिखा है कि इज बेटर ये कंट्री जिसका एक बैकबोन हो और जो स्वतंत्र हो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ फकिंग स्लेव। लॉन्ग लिव इंडिया। उसके बाद डायरेक्टर तियान ने लिखा है कि टू बी ऑनेस्ट इंडिया एक ऐसा देश है जिसकी एक बहुत लंबी हिस्ट्री है और इसीलिए इंडिया बहुत एक्सपीरियंस्ड है सही और गलत को परखने में, विच मेक्स मी ऑस्ट्रक। अच्छे प्रिंसिपल्स को अपनाना तो आसान है लेकिन उसको कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल है और इंडिया ने वो कर दिखाया है। उसके बाद ई चू ने लिखा है कि इंडिया एक ऐसा ताकतवर देश है कि उसके पड़ोसी देश उससे डरते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया और रशिया के दोस्ती के बारे में बात करें तो दोनों ऐसे देश हैं जिन्होंने कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। दीज टू ब्रदर्स डिजर्व्स ऑल द प्रेजेस। इन दोनों भाइयों को दिल से रिस्पेक्ट है। उसके बाद ईसाया ने लिखा है कि इंडिया में बहुत सारे लोग बहुत सेंसिबल है और इसका एग्जाम्पल और भी एक बार इस होस्ट को देख के मिला। ही स्पीक्स रैशनली विथ नो रिस्ट्रेंट्स। अब बताओ चाइना में कितने ऐसे दलेर लोग होंगे जो ऐसा कर सकते हैं? शायद कोई भी नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका ही कमेंट का एक हिस्सा है जो उन्होंने कहा। उसके बाद क्विंग फेंग सियाओ ने लिखा है कि ज़रा हमारे देश के रिपोर्टर्स को तो देखो, ऐसा लगता है कि जैसे कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, मुंह ही नहीं खुलता। दिस इंडियन होस्ट रियली हिट द नेल ऑन द हेड और अमेरिकन्स की बोलती बंद कर दी। सो फ्रेंड्स, वीडियो हुआ खत्म। वीडियो में हमने देखा कि कैसे अर्नब गोस्वामी ने झट के जवाब दिया, एकदम की चीज जो होता है ना कि पानी में चप्पल भिगो के मारना, वैसे जवाब दिया है। और वो प्रोफेसर का मुंह देखने लायक था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था और वो जब उसको कोई पॉइंट नहीं मिल रहा था तो बार बार बीच में इंटरप्ट कर रहा था। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने बढ़िया जवाब दिया कि भाई जब आप बोल रहे थे तो मैं तो आपकी पूरी बात सुन रहा था, तो अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो आप भी सुनिए। और ये शुरू से होता है कि अमेरिका अपने को सोचता है कि मैं ही सबसे, हम ही जो है सब है, बाकी सब हमसे वीक है, सब हमारे नीचे हैं। मतलब वो अगर कोई भी गलती कर ले तो ठीक, अगर हम वही गलती कर ले तो वो तो बेकार। वो हमेशा अमेरिकन अपने को हमेशा अपने मोरली हाई स्टैंडर्ड रखते हैं दूसरों को। उनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि दे आर फार सुपीरियर, सब लोग बेकार है। उनको लगता है अमेरिका नहीं तो वो दुनिया नहीं। वो सोचते हैं अमेरिका में, जबकि उनके यहाँ भी बहुत इश्यूज है, उनके यहाँ भी रेप इश्यूज है, उनके यहाँ भी रेसिज्म। वहां पे जो ब्लैक अमेरिकन हैं उनको कितना परेशान किया जाता है। आपको मैं बताती हूँ कि जैसे वहां पे आबादी ब्लैक अमेरिकन की 10% है, पर वहां की जेलों में उनकी आबादी 33% है, क्योंकि उनको ज्यादा ऑप्रेस किया जाता है, उनको राइट्स नहीं मिलते इतने। तो जो इनको नेटिव अमेरिकन से बोलते हैं, तो इस तरह की दिक्कतें भी आती है। वहां पे रेसिज्म है, वहां पे भी जेंडर इक्वालिटी नहीं है। और वहां पे सबसे बड़ी बात, वहां पे जो अबॉर्शन राइट, जो बहुत सिंपल राइट है, राइट टू अबॉर्ट। अगर इंडिया में है, अबॉर्शन इज वे मच इजियर देन अमेरिका। वहां पे अबॉर्शन के लिए कितनी दिक्कतें होती है, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। वहां पे तो वहां का चर्च है, वो अलाउ नहीं करता, पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वही बात है ना कि ऐसा नहीं होता कि कोई भी कंट्री फ्लॉलेस होता है। वो होता है ना कि अपने को एक अच्छा क्लीन चिट शेप कर देना और दूसरा कोई कंट्री करे तो उसको, अगर इंडिया में दंगे होते हैं तो उसको एकदम पेंट कर दिया जाता है इंडिया तो एक ऐसी ही कंट्री है जहां पे दंगे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भी कुछ दिन पहले कनाडा में ट्रक वाले दंगे हुए थे, वहां पे यूरोपियन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया एकदम उसको एक अच्छे वे में दिखाया जाता है। अगर वही चीज इंडिया में होता है तो उसको बहुत बुरी तरीके से दिखाया जाता है। अभी स्वीडन में इतनी दिक्कत हो रही है, कितनी रशिया यूक्रेन में दिक्कत हो रही है। इनको ये दिक्कत है कि इंडिया अपना स्टांस क्यों फॉलो कर रहा है, ये पहले वाला इंडिया क्यों नहीं है। पहले वाला इंडिया तो ये देखता था कि वेस्ट किस चीज से खुश है, तो भाई अब वो इंडिया तो चला गया, उसने अपीसमेंट पॉलिसी छोड़ दी है भाई उसको। और उसके पास लॉजिकल जवाब है ना कि जब आपने किया था तब तो हमने कुछ नहीं बोला था, अब जब हम ऐसा कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। और जो चाइना के लोग थे भाई, उनको इसलिए अच्छा, क्योंकि उनकी भी तो बनती नहीं है अमेरिका से, तो उनको तो अच्छा लगेगा कि भाई कोई जवाब दे रहा है उसको। और चाइना के लोग इतना मीडिया को, अर्नब गोस्वामी को इसलिए प्रेज कर रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि वहां में फ्री मीडिया नहीं है। सबको पता है चाइना में फ्री मीडिया नहीं है भाई। वो तरसते, वो कुछ नहीं बोल सकते। हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री में पैदा हुए, वी आर सो लकी कि हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। पर वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे जैक मा, समझ लीजिए कि वहां का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, जैसे यहाँ पे टाटा बिरला हो गया, अगर उनको कोई गायब कर लिया, अंबानी को वो गायब हो गए थे वहां पे। तो आप सोच के देखिए कि वहां पे लिबर्टी कितनी कम है। तो वहां के लोग जब इस तरह का कुछ देखेंगे
क्योंकि भाई वहां पे जो मीडिया है पूरी तरह से स्टेट कंट्रोल मीडिया है, सब कुछ फिल्टर हो जाता है, आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। कितना न्यूज दिखाना है, कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसमें नंबर्स कितना दिखाना है, क्या दिखाना है, एवरीथिंग इज स्टेट कंट्रोल। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। तो फिर ये सब जब चीजें देखेंगे तो उनको आश्चर्य होगा, वो कमेंट करेंगे, और वो कमेंट चाइनीज में मैं तो पढ़ सकती नहीं, तो एक यूट्यूबर थे, इनके चाइनीज कमेंट को ये हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, तो इस चीज से मैं समझ पाती हूँ, इसलिए मैं इनको लेकर आई। तो आप इनके वीडियोस को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इनको भी सपोर्ट करिएगा। इनके वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, अगर मेरी वीडियोस भी पसंद आती है तो इनको, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और आप बताइए आपके क्या व्यूज है, क्या मैं सही बोल रही हूँ, क्या आपको लग रहा है मैं गलत बोल रही हूँ। जो भी आपके व्यूज है आप बता सकते हैं, मैं अपने को इम्प्रूव करूंगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।